خوف کی آواز۔ کیا آپ لوگ بھی اس دنیا میں موجود الگ الگ مخلوقات پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ یہاں میرا مطلب انسان یا جانوروں سے نہیں، بلکہ جنات، شیطان، پشاچ، چڑیل اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات سے ہے۔ اس دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں انسانوں کے علاوہ بھی بہت بھیانک اور خوفناک مخلوق موجود ہوتی ہیں، جن کے ہونے کا احساس ہی ہمیں بے سکون سا کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک فارم ہاؤس کی کہانی سنانے والا ہوں، جہاں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بہت سارے جناتوں کا بسیرا ہے، اور وہ وہاں کسی بھی انسان کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے زاویار نے، جن کا تعلق لاہور، پاکستان سے ہے۔ اپنی کہانی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ 2005 میں پیش آیا تھا۔ ہم اس وقت کالج میں پڑھتے تھے۔ اس وقت ہمارا ایک دوست جو کہ اسکول میں ہمارے ساتھ تھا، اور اسکول کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہو گیا تھا، مگر ہر سال چھٹیوں میں لازمی پاکستان آتا تھا۔ اس سال بھی ہمارا دوست جب سعودیہ سے چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا، ہم سب دوستوں نے پاکستان ٹور کا پلان بنایا۔ ہم سب بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، کیونکہ کافی عرصے بعد ہم سب دوست ایک ساتھ تھے اور کہیں جا رہے تھے۔ ہم ٹوٹل 6 دوست تھے۔ میرے علاوہ 5 دوست اور تھے: الیاس، ظہیر، عامر، عمر اور زہیب، جو کہ سعودیہ سے آیا ہوا تھا۔ ہمارا پلان تقریباً 2 ہفتوں کا تھا۔ ہم نے اپنا سفر اسلام آباد سے شروع کیا، پھر وہاں سے ہمیں آگے ناردرن ایریاز میں جانا تھا۔ ہر جگہ گھومنے کے بعد جب ہم کشمیر پہنچے تو وہاں بھی ہم نے ہوٹل بک کرنے کا سوچا، مگر کشمیر میں زہیب کا ایک دوست رہتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں سے کچھ دور ایک فارم ہاؤس ہے، تم لوگ وہیں پر 3 دن کے لیے رہ لو، وہ تم لوگوں کو سستا بھی پڑے گا۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک دوست نے اس کو اس فارم ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا، اور ہم نے وہ فارم ہاؤس بک کر لیا 3 دن کے لیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو فارم ہاؤس کے باہر کی طرف تھوڑا دور ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، جس میں وہاں کا کیئر ٹیکر رہتا تھا، جو کہ فارم ہاؤس کی دیکھ بھال وغیرہ کرتا تھا۔ جب اس نے ہمیں دیکھا تو بڑی حیرانی سے پوچھا کہ آپ لوگ کون اور یہاں کیسے؟ ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی، ہم نے یہ فارم ہاؤس بک کیا ہے 3 دن کے لیے۔ اس نے کہا کہ بڑی بات ہے، کافی عرصے بعد کوئی یہاں پر آیا ہے اس فارم ہاؤس پہ رہنے کے لیے، اور وہ بھی خاص طور پہ رات کے وقت۔ اس کے بعد ہم فارم ہاؤس کے اندر آ گئے، اور اس کیئر ٹیکر نے سب لائٹس آن کر دیں۔ اس فارم ہاؤس میں 2 بڑے بڑے ہال تھے اور 6 کمرے تھے۔ اب ہم تو تھے ہی کل 6 دوست۔ ہم نے کہا کہ 3 لڑکے 2 کمرے لے لیتے ہیں، کیونکہ الگ الگ کیا کرنا تھا ہمیں۔ پہلے ہی رات ہم دوستوں نے کافی انجوائے کیا، ساتھ میں باربیکیو بنایا، اور اس کے بعد ہم سب سوئمنگ کرنے کے لیے چلے گئے۔ سوئمنگ کرتے کرتے زہیب نے کہا کہ میں ذرا واش روم سے ہو کر آتا ہوں، اور اس کے بعد وہ واش روم چلا گیا۔ اس کو واش روم گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہم سب دوستوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ کہاں رہ گیا ہے زہیب؟ تو میں اور ظہیر زہیب کو دیکھنے کے لیے اندر گئے۔ جب ہم اندر گئے، ہم نے زہیب کو آوازیں دیں، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے رومز دیکھے، مگر دونوں رومز جن میں ہم نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا، وہاں زہیب نہیں تھا۔ ہم نے اس کے علاوہ باقی کمروں میں بھی دیکھا، مگر زہیب کہیں نظر نہیں آیا۔ جب ہم نے واش روم کھول کر دیکھا تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ وہاں زہیب بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں نے اور ظہیر نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔ ظہیر جلدی سے بھاگ کر باقی دوستوں کو بھی بلا کر لے آیا۔ وہ سب جب روم میں آئے تو پریشان ہو گئے کہ زہیب کو کیا ہوا ہے۔ ہم نے زہیب کو اٹھایا، اس پہ پانی پھینکا، تو تھوڑی دیر بعد وہ ذرا ہوش میں آیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم بے ہوش کیسے ہو گئے؟ ہم نے تمہیں کافی آوازیں دیں۔ تو وہ ذرا پریشان لگ رہا تھا اور ہم سب کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جب میں واش روم کے لیے ہمارے کمرے میں آیا اور جب واش روم گیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی روم میں آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ تم میں سے کوئی آیا ہوگا۔ میں جب واش روم سے فارغ ہو کے فریش ہو رہا تھا تو واش روم کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو ایک بچہ جس کا منہ دوسری طرف تھا زمین پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔
मैं भी उसको देख ही रहा था कि अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पे न आंखें थीं, न नाक और ना ही कान। मैंने जैसे ही उस भयानक बच्चे को देखा तो मैंने चीख मारी और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने तुम लोगों को भी काफ़ी आवाज़ें दी मगर तुम लोगों ने नहीं सुना। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि अचानक ज़ोर ज़ोर से वॉशरूम का डोर बजना शुरू हो गया। मैं मज़ीद चीखते हुए तुम लोगों को बुलाने लगा मगर तुम लोगों का कोई जवाब नहीं आया कि इतने में ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसी खौफ में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे कौन है देख सकूं, और उसी हालत में बेहोश हो गया। ज़ुहैब की ये सारी बातें सुनकर हम सब भी परेशान हो गए थे। हमने उसी दोस्त को फ़ोन मिलाया जिसने हमें ये फार्म हाउस दिलवाया था मगर उसने फ़ोन पिक नहीं किया। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। हम सब ज़ुहैब की बातों से काफ़ी परेशान थे मगर इस टाइम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने फ़ैसला किया कि रात रुकते हैं, सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। मैं, ज़ुहैब और आमिर एक रूम में हो गए और इलियास, ज़हीर और उमर एक रूम में सेटल हो गए। वैसे तो रूम्स काफ़ी थे मगर पहले ही हमने कहा था कि हम अलग अलग क्या करेंगे, और जब से ज़ुहैब ने जो बताया था वो सुनने के बाद तो अलग अलग रूम में सोने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता था। खैर, हम रूम्स में लेट गए। हम तीनों आपस में बातें कर रहे थे। हम बार बार ज़ुहैब से पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हें कोई वहम तो नहीं हुआ, मगर वो कह रहा था कि मैंने अपनी आंखों से उस बच्चे को देखा था। उसका चेहरा निहायत भयानक था। हम बातें करते करते सो गए, हमें पता नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो सब ने यही कहा कि हमें तो यहाँ पूरी रात कुछ भी महसूस नहीं हुआ है, शायद ज़ुहैब को कोई वहम हुआ है। हमने वहाँ के केयर टेकर से भी पूछा मगर उसने बस बात को गोल मोल कर दिया और सही से जवाब नहीं दिया। सब दोस्तों ने कहा कि यार 2 दिन की और बात है, यहीं रुकते हैं, कुछ नहीं होगा। पूरा दिन बहुत सुकून से गुजर गया और हमें कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ। रात हुई तो वो केयर टेकर भी अपने रूम में चला गया जो कि फार्म हाउस से थोड़ा दूर बना हुआ था। उस रात जब मैं, आमिर और ज़ुहैब रूम में लेटे तो साथ ही ज़हीर, इलियास और उमर भी हमारे पास आ गए और बातें करने लगे। उसके बाद ज़हीर, उमर और इलियास अपने रूम में लेट गए। अचानक कुछ देर बाद बाहर से बहुत भयानक सी चीख सुनाई दी। उस आवाज़ के आते ही हम तीनों जो कि आराम से बातें कर रहे थे उठ के बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या था, ये कैसी आवाज़ थी। हम आहिस्ता से बेड से उतरे और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ आए तो इतने में ही साथ वाले रूम से इलियास, ज़हीर और उमर भी आ गए। उन्होंने भी वो चीख सुनी थी। हम सब वहीं खड़े एक दूसरे से पूछना शुरू हो गए कि ये सब क्या था, ये कैसी भयानक आवाज़ थी। हमने आगे पीछे हर जगह का जायज़ा लिया मगर हमें कोई भी नज़र नहीं आया और हम सब रूम में वापस आ गए। हम काफ़ी देर तक डरे हुए इस बारे में बात कर रहे थे कि ये सब क्या है यहाँ पे, ये जगह ठीक भी है या नहीं। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद हम सो गए। काफ़ी देर बाद हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी आंख उसी वक्त खुल गई। मैंने देखा कि बाहर की तरफ काफ़ी अंधेरा था। मैं आहिस्ता से उठा और हल्की आवाज़ में पूछा कि कौन, मगर आगे से कोई आवाज़ नहीं आई। ज़ुहैब और आमिर गहरी नींद सो रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था मगर मैं उठा और दरवाजे की तरफ गया। बाहर झांक कर देखा मगर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर लेट गया। अभी मैं प्रॉपर तरीके से लेटा भी नहीं होऊंगा कि दरवाज़ा दोबारा खुल गया। मैं फ़ौरन उठ गया। मैंने देखा कि अंधेरे की वजह से बाहर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि इतने में ही कॉर्नर से एक हाथ अंदर की तरफ आया और वापस चला गया। मुझे लगा कि शायद दोस्तों में से कोई है। मैं उठकर बाहर की तरफ आया और कहने लगा कि मजाक बंद करो ये सब। मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही कमरे में वापस आने लगा तो देखा कि सामने जो बड़ा सा हॉल है वहाँ कोई खड़ा हुआ है। मैंने आवाज़ दी, कौन कौन है वहाँ? तो जो भी था मेरी तरफ मुड़ा और वहीं खड़ा रहा। अंधेरा काफ़ी था, तभी साफ साफ पता नहीं चल रहा था कि कौन है। मैं आगे बढ़ा तो वो बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ भागा और भागते भागते ही एक बिल्ली बन गया।
मैं उसके पीछे भागा, मगर जैसे ही उसको बिल्ली बनता हुआ देखा वहीं गिर गया और ज़ोर ज़ोर से दोस्तों को आवाज़ें देना शुरू कर दी। सब भाग कर आए और जब मैंने सब कुछ उनको बताया तो वो सब बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये सब जो मैंने देखा था आज से पहले कभी नहीं देखा था। हम सब फ़ौरन रूम में आ गए और अंदर से रूम लॉक कर लिया। हम सब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा बजा और हम सब की सांसें खुश्क हो गईं। आमिर ने आवाज़ देकर पूछा कि कौन? तो आगे से उसी सिक्योरिटी वाले की आवाज़ आई जो यहाँ केयर टेकर था। उसने कहा कि खोलो। आमिर जल्दी से भागा और रूम खोला, मगर सामने कोई नज़र नहीं आया। आमिर ने ज़रा बाहर की तरफ देखा तो वो केयर टेकर अंधेरे में खड़ा हुआ था। आमिर आगे गया और आमिर ने कहा कि भाई अच्छा किया तुम आ गए, यहाँ कोई मसला है, ये जगह ठीक नहीं है। तो वो आमिर की आंखों के सामने ही सामने गायब हो गया। आमिर जल्दी से रूम की तरफ भागा, मगर रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। हम सब भागकर दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खोलने लगे। बाहर से आमिर चीख चीख कर कह रहा था कि खोलो, प्लीज़ जल्दी खोलो। आमिर को फिर से अंधेरे में कोई खड़ा हुआ नज़र आया और वो मुसलसल यही कह रहा था कि जल्दी खोलो। हम पूरी ताकत लगा रहे थे, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर से आमिर की अचानक बहुत ज़्यादा दर्दनाक चीख सुनाई दी। हम सब बहुत घबरा गए और बस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते रहे। जैसे ही कमरा खुला हम सब बाहर की तरफ भागे तो हमने देखा कि हॉल में आमिर बेहोश पड़ा हुआ है। हमने जल्दी से आमिर को उठाया तो उसके होंठ और सर से खून आ रहा था, जैसे कोई चीज़ उसको ज़ोर से लगी हो। हमने उसको लिटाया और यही फ़ैसला किया कि हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। सब ने फ़ैसला किया कि बस रात गुजारो। हम सब के सब जल्दी से कमरे में आए और कमरा अंदर से बंद कर दिया। हम में से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर देख सकें, क्योंकि हमने ये सब जो एक्सपीरियंस किया था आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था। हम सब काफ़ी देर वहीं बैठे रहे और इतने में ही कब हमारी आंख लग गई हमें पता नहीं चला। कुछ वक्त गुजरा होगा कि बाहर की तरफ से किसी के भागने की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई भाग रहा हो। मगर ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि हम सब तो एक ही रूम में थे। हम सब की आंख खुल गई और हम सब एक दूसरे की तरफ डरे हुए अंदाज में देखने लगे। ज़हीर ने हिम्मत की और कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो बाहर एक काला साया यहाँ वहाँ घूमता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही ज़हीर ने उसे देखा तो वो साया तेज़ी से हमारे रूम की तरफ आने लगा। तो ज़हीर ने जल्दी से रूम बंद कर दिया और लॉक कर दिया। हमें साफ साफ महसूस हो रहा था कि बाहर कोई आकर खड़ा हुआ है। हम सब की हालत बहुत ख़राब हो गई थी कि आखिर हम आज की रात यहाँ क्यों रुके। काश हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाते। हमारी सबसे बड़ी गलती थी यहाँ रुकना। हम सब के फ़ोन्स में जो भी तिलावत या सूरतें थीं हमने उनको ऊंची आवाज़ में लगा दिया और ख़ुद भी अल्लाह पाक के नाम का विर्द करते रहे। कुछ देर बाद फजर का टाइम हो गया और हमने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। हमने आगे पीछे देखा मगर कोई भी नज़र नहीं आया। हमने जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू किया। साथ वाले रूम में ज़हीर, इलियास और उमर अपना सामान समेट रहे थे और यहाँ हम तीनों के इतने में ही हमें किसी के सरगोशियाँ करने की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कुछ लोग आपस में कोई बात कर रहे हों। वो क्या कह रहे थे ये तो हम समझ नहीं पा रहे थे, मगर वो आवाज़ें हॉल में से आ रही थीं। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने हॉल में जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो आवाज़ें क्या थीं हम समझ नहीं पाए। हम जैसे ही हॉल में गए तो आवाज़ें आना बंद हो गईं। अभी हमने सुकून का सांस ही लिया होगा कि हमारे रूम्स के दरवाज़े बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद हो गए। हमने भागकर उनको खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर की तरफ से बंद हो गए थे। इस सब ने हमारे खौफ में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया था। हम सब भागकर फार्म हाउस से बाहर आ गए। हमें साफ साफ अंदर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। सुबह तक हमने वहीं बाहर वेट किया और जब सुबह हो गई तो हम उस केयर टेकर के रूम में गए और उसको उठाया और सब बताया तो वो खामोश हो गया। हमने उससे पूछा कि क्या वजह है, तुम बताओ, आखिर तुम क्यों नहीं बता रहे हो। तो उसने बताया कि भाई मैं तो यहाँ 4 साल से हूँ। यहाँ कोई भी रात के वक़्त नहीं आता है रहने के लिए। ये जगह भारी है।
यहाँ जिन्नात और शयातीन का कब्ज़ा है। मैंने खुद रात के वक़्त यहाँ से बहुत अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें सुनी हैं। यहाँ अगर कोई आ भी जाए तो बस दिन ही दिन गुजार कर चला जाता है। रात को रुकना सेफ़ नहीं है यहाँ पर। तभी जब आप लोगों को 3 दिन के लिए आते हुए देखा तो मैं भी घबरा गया, मगर आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरी नौकरी की बात थी। मेरी नौकरी ख़त्म हो जाती। यहाँ के जो मालिक हैं वो भी यहाँ पर नहीं आते हैं। इस जगह को तोड़ने की भी कोशिश की गई, मगर जब भी काम स्टार्ट हुआ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। कभी किसी काम वाले को चोट लग जाती है तो कभी किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है। तभी यहाँ अब सब ने आना छोड़ दिया है। ये सुनते ही हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सुबह होने पे हम उस केयर टेकर को लेकर अंदर गए तो देखा कि रूम्स खुले हुए थे। हमने जल्दी से अपना सामान उठाया और वहाँ से निकल गए। उस फार्म हाउस पे गुजारी हुई वो 2 रातें हम पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ज़ावियार साहब की बताई गई ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खौफनाक कहानी या कोई पुरअसरार किस्सा है तो हमारे साथ शेयर करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पुरअसरार कहानी, एक नए खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।